Hi guys, welcome to DPM 14. These days we are doing numbers, right? So this question can be easily solved with the concept of Wilson. So Wilson's theorem says that K, if there is a prime number P and if there is P minus 1 factorial, P minus 1 factorial divided by P, the remainder will always be P minus 1. If P minus 1, P minus 2 factorial divided by P, the remainder will be sorry 1. If p minus 3 factorial is there and it is divided by p, then it will be p minus 1 by 2. अगर आपने नंबर्स थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, if you have gone through numbers, तो विल्सन आया ही होगा. कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है ही नहीं. सो कंडीशन क्या है कि p should be prime. Cool. So if see here what is the case, 41 is prime and numerator में it is 41 minus 2 a factorial. So that is this case. That means it is going to give me remainder as 1. Cool. So it was very simple. Let's move to the next question. Next question says that there is set जिसके अंदर there are 5 values n, n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4, where n goes from 1 to 98. How many of these sets contain 7 or any integral multiple thereof, that is any one of the numbers 7, 14. या तो 7 का कोई मल्टीपल अगर आ गया, सो ऐसे कितने सेट्स हैं जिसके अंदर आइदर देयर इज 7 और 7 के मल्टीपल्स आते हैं. So if we see, if I put n ka value 1, s1, so my set will be what? 1, 2, 3, 4, 5. Set 2 will be what? 2, 3, 4, 5, 6. Set 3 will be what? 3, 4, 5, 6, 7. Right? See, यहाँ से 7 आना शुरू हुआ. If I'll put s4, again I'll get 7, है ना? In the set n plus 3, right? N plus 3 वाली term पे there will be 7. So it is going to be 4, 5, 6, 7, 8, right? Then S5 maybe there will be n plus 2. S6 maybe there will be n plus 1. S7 maybe it is going to be there because the n now itself is 7, right? Then if you'll go on, sorry मैं थोड़ा सा गलत ब्रैकेट बना दिया. If you will go on S8, you'll find that again there will be no term. See, S8 जैसे ही लिखा, so it is going to be what? 8, 9, 10, 11, 12. Done. S9 जैसे ही लूंगा वैसे ही क्या हो जाएगा? 9, 10, 11, 12, 13. Again इन दोनों के अंदर I am not getting any multiple of 7. पहले दो में भी I was not getting any दो multiple of 7. जैसे ही मैं अब इधर S10 डालूंगा, the last term which is n plus 4 that will become 14. S11 पे last second term, S12 पे last third term, है ना? फिर last fourth term S13 पे, and S14 तो n ही है, 14 खुद ही आ जाएगा. Then again we are going to get S15 and N16 पे there will be nothing. So in every 7 का frequency there are 5 sets जिसके अंदर there are 7's multiple and there are 2 sets जिसमें there are not. So I'll see कि 98 में कितने 7 के cycles आ सकते हैं. So 14 cycles आ सकते हैं. Out of these 14 cycles, 5 sets will be of जिसके अंदर 7 की digits होंगी, 7 के multiples होंगे. So 14 into 5 is going to be our answer, which is 70. There are 70 such set which can do this. Cool. Let's move to the next question. Which of the following number will completely divide 6-digit number from xyx, xyx, yxy, right? So इस डिजिट को अगर आप ब्रेक डाउन करें, सी x y x y x y. Let me write it a little more fast so you guys can get a better understanding. So this is the thing. If this is a number
then I know this is 10 raised to the power 0, which is 1. Then 100 digits के साथ में 100 multiply होगा, tens tens के साथ में 10 multiply होगा, and it will move like this only. So see, this is, इसके साथ तो 1 ही रहेगा, प्लस इसके साथ में 10 आ जाएगा, प्लस इसके साथ में 100 will be there, प्लस इसके साथ में 1000 will be there, प्लस इसके साथ में it is going to be 10,000, प्लस इसके साथ में it is going to be what? 1 lakh. So अगर मैं x की टर्म्स को सबको जोड़ देता हूँ, which is 1 lakh, then 10 and 100. So it is going to be 100 नहीं, 1000 है ना, I am so sorry, 1000. So see, digit is 1 0 1 0 1 0 1. So I can say this is 1 0 1 0 1 0 x. Then similarly, if I add y's term, so it is going to be 10,000 plus 100 plus only 1. Y का coefficient is 1. So it is going to be 1 0 1 0 1, right? Plus 1 0 1 0 1 y. The number is going to break down like this. Now I can take common 1 0 1 0 1 out of it. So it will be 10x plus y. So मैंने इस नंबर को ब्रेक डाउन किया है, मेरे को पता पड़ा कि देर इज बाहर दिस नंबर इज. सो अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो इस नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए. आई डोंट, बी इज द ऑप्शन, बी ऑप्शन मिसिंग है इस पीपीटी में, बट बी इज द आंसर. सी 1 0 1 0 1 है ना, वो बाहर कॉमन है. इफ आई डिवाइड इट 1 0 1 0 1 के साथ में तो दे विल डायरेक्टली कैंसिल आउट, राइट? सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस नंबर. एंड सी, दिस इज कूल. इसके अंदर मेजॉरिटी इस टाइप के सारे ही कवर हो गए. सो एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है इन द टर्म्स ऑफ 2 raised to the power 7 3 raised to the power 6 and 5 raised to the power 3. डन. सो द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, a का आंसर क्या होगा? आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला एज वेल. ठीक है. सो व्हेन दैट इज द केस, इफ अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a raised to the power p into b raised to the power q into c raised to the power r and so on, right? And where a b c are my prime numbers, so basically ये n का प्राइम फैक्टराइजेशन है. तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं दे आर p plus 1. मतलब हर एक प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर में यू ऐड 1 and multiply it, right? And so on. So in this case it is already done, प्राइम फैक्टराइजेशन हो रखा है. तो 7 plus 1 which is 8, 6 plus 1 which is 7 and 3 plus 1 which is what? 4. ये जो भी आंसर आ रहा है ना, 8 4s are 32, 32 into 7, right? 210 plus 14, I guess, है ना. 2 sevens are and 37s are done. So 4 2 224 factors आते हैं. Done. फिर find the total number of factors which are odd. So odd factors find करने के लिए what you do, you first find even factors of it. So for finding even factors, you take 1 2 out of the entire system. So I'll take 1 2 out and I'll write the remaining part like this. Now I know okay, total number of factors are 224, right? I took 1 2 out. अब इससे मल्टीप्लाई होने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, इनके जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, they all are going to be even just because I took 1 2 out, right? So in this case I need to find सिर्फ इसका number of factors, which is 6 plus 1 multiply 6 plus 1 multiply 3 plus 1. सबकी पावर में प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर दिया. सिमिलरली जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाला था, तो इट इज 7 into 7 into 4, right? So 7 sevens are 49, 49 into 4, that is 200 में 4 कम, that is 196. So out of 224, 196 are क्या कहते हैं, even.
That means the remaining are odd. So 28 are odds. So odd is 28, even is 196. The other way of doing this is कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर से सिर्फ उन्हीं के ही प्राइम फैक्टर्स निकालो, उन्हीं के नंबर फैक्टर्स निकालो जो कि ऑड नंबर है, टू मत निकालो, बाकी सब निकाल लो। जैसे कि अगर डायरेक्टली ऑड निकालना, यू डोंट वांट टू फाइंड इवन, तो व्हाट यू विल डू इज कि आउट ऑफ 2 रेज टू द पावर 7, 3 रेज टू द पावर 6 एंड 5 रेज टू द पावर 3, आप सिर्फ जो ऑड फैक्टर्स हैं, ऑड प्राइम फैक्टर्स हैं, ऑब्वियसली 2 को छोड़ के सारे ही होंगे, उन्हीं के ही सिर्फ निकालिए नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो दिस इज गोइंग टू बी 6 plus 1 which is 7 multiply by 3 plus 1 which is 4, right? So again आपका आंसर 28 ही आएगा। So आप you can do that as well। Done? तो ये हो गया। Let me go to the other part of it। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n which are composite। सो समझो कि 2, 3, 5 को छोड़ के, ठीक है, सारे ही कंपोजिट फैक्टर है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से प्राइम फैक्टर्स माइनस कर दो, यू विल गेट कंपोजिट नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, सो ये हो गया। ई के अंदर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन विच आर मल्टीपल ऑफ 3। सो अगेन यू डू द सेम थिंग, जैसे हमने इवन में 2 बाहर निकाला था, इन दिस केस यू टेक 1 3 आउट। सो 2 रेज टू द पावर 7 इंटू 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 3, इतना बाकी रहेगा, है ना। सो अब आप इतने पार्ट्स के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, वो जो भी होंगे वो इसके मल्टीपल ही होंगे 3 के। तो 2 रेज टू द पावर 7, 7 प्लस 1 8 इंटू 6 इंटू 4, 48 इंटू 4, दैट इज 2 4 8, तो 192, है ना। देयर आर 192 फैक्टर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3। देन F बोल रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 12। सो यू टेक 112 आउट, राइट? You take 112 out of the entire picture. So for 12 ka prime factorization says 2 square into 3. So you took 2 square out, you took 1 3 out, so remaining part will be 2 raised to the power 5 into 3 raised to the power 5 into 5 raised to the power 3, right? So this is 6, 5 plus 1 6, 5 plus 1 6, 3 plus 1 4, right? So ये कितना हो जाएगा आप देख लो, 6 is a 36, 36 into 4, right, which is 72, 144. Answer is going to be 144. Then find the total number of factors of n which are perfect square। ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर है, अब ये कैसे निकालेंगे, राइट? आप सारी पावर इवन कर दो। नहीं, सारी पावर इवन करने से होगा नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। सो पहले तो सारी पावर इवन करना इज द टास्क, है ना। सो 2 रेस 2 एक अलग से हमने बाहर निकाल लिया, 2 रेस टू द पावर 6, है ना, इंटू 3 रेस टू द पावर 6 इंटू एक 5 भी बाहर निकाल लेते हैं, 5 रेस टू द पावर 2। हमको पता है कि स्क्वायर के अंदर सारी पावर इवन होने वाली है, ठीक है। सो आप ये कर सकते हो कि इतने पार्ट के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो और आधे कर लो, या तो पावर अभी से ही आधी कर लो और जो बाकी रहा है उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो। यू कैन डू दिस, 2 रेस टू द पावर 3, 3 रेस टू द पावर 3 इंटू 5 रेस टू द पावर 1। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो तो आपको पता पड़ जाएगा स्क्वायर कितने फैक्टर्स है। तो दिस इज 4 4 2 4 2 8 8 4 32, देयर आर 32 फैक्टर्स। और या फिर आप इतने पार्ट के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, उसको डायरेक्टली हाफ कर लो, है ना। इट इज वन एंड द सेम थिंग, है ना, क्योंकि एक स्क्वायर के फैक्टर में देयर आर गोइंग टू बी टू पावर्स गोइंग टू गेट यूटिलाइज्ड, है ना। तो आप देखोगे तो दिस इज 7 7 इंटू 7, 49 49 इंटू 2। ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? लेट्स सी। यूजुअली तो हम आप पूरा पूरा स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, हम पूरा पूरा स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, तो इट इज गोइंग टू बी 2 रेज टू द पावर 3
into, so इसको I am rewriting it like this, 3 raised to the power 3, 5 raised to the power 1 स्क्वायर। अब इस नंबर में ये 2 अंदर जाते से सारी पावर नॉर्मल हो जाएगी। हाँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स यू कैन नॉट हैव, सॉरी माय बैड। सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली, के 2 रेज़ टू द पावर 3, 3 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 1, पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर बाहर लगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी फैक्टर आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर है। सो इट इज गोइंग टू बी 4 into 4 into 2, है ना? सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है, 16 into 32। फिर परफेक्ट क्यूब, सो सिमिलर, आप पावर बाहर 3 ले जाओगे, है ना? सो आप ट्राई ये करोगे कि आप पावर बाहर 3 ले जाओ, तो आप इस पूरे में से सिर्फ एक 2 बाहर लिखोगे, जिससे कि अंदर वाला ब्रैकेट हो जाए 2 रेज़ टू द पावर 6 into 3 रेज़ टू द पावर 6 into 5 रेज़ टू द पावर 3, राइट? अब 3 आप ऊपर ले लीजिए पावर में, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 into 3 रेज़ टू द पावर 2 into 5 रेज़ टू द पावर 1, पूरा ब्रैकेट का वैल्यू इज 3। अब नाउ यू मेक, इसको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, इसके जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स अंदर आ रहे होंगे वो सारे क्यूब होंगे। सो इट इज गोइंग टू बी 2 रेज 3 into 3 into 2, so that is 18, ठीक है? Then what is the next question saying? Find the total number of factors which has unit digit as 0. You take 110 out, so every factor will have unit digit as 0. सो आप क्या करोगे, इस पूरे में से यू टेक 10 आउट विच इज 2 into 5, तो अंदर क्या बाकी रहा, 2 रेज़ टू द पावर 6, 3 रेज़ टू द पावर 6, 5 रेज़ टू द पावर 2, राइट? अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स जितने भी निकालोगे उसकी लास्ट डिजिट 0 होगी, है ना? तो 7 7 7 7 is 49, 49 into 2 is 98, ठीक है? सो दैट इज द आंसर। unit whose last two digits are 0, find the total number of factors whose last two digits are 0। सो आप 100 बाहर निकाल लोगे, आप एक और दो, आप 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर बाहर निकाल लोगे। सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, 2 रेज़ टू द पावर 5 into 3 रेज़ टू द पावर 6 into 5 रेज़ टू द पावर 1। सो दिस इज गोइंग टू बी 6 into 7 into 2, 42 into 2, 84, राइट? सो यहाँ तक हो गया, ठीक है? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के ही लॉजिक के ऊपर से इट वाज वर्किंग आउट। Important is sum of all factors. So if my number is given in this format, a raised to the power p into b raised to the power q into c raised to the power r, where a, b, c जो है वो prime है, so basically this is prime factorization. My sum of all factors is going to be a raised to the power p plus 1 minus 1 upon a minus 1 multiply b raised to the power q plus 1 minus 1 upon b minus 1, then c raised to the power r plus 1 minus 1 upon c minus 1, and so on it continues, right? So in our case it is 2 raised to the power 7 into 3 raised to the power 6 into 5 raised to the power 3. So 2 raised to the power 7 मतलब 2 raised to the power 8 minus 1 upon 2 minus 1 which is 1 multiply 2 raised to the power 8 कितना हो जाएगा, 2 raised to the power 10 होता है 1024, उसका आधे का आधा, that is 256, so it is 256। 3 raised to the power 6, so 3 raised to the power 6 plus 1 which is 7, I'm not going to calculate this much, 3 minus 1 which is 2, है ना? Then this is 5 raised to the power, sorry, multiply 5 raised to the power 4 minus 1 upon 5 minus 1. So we are supposed to solve this and we are going to get our answer, sum of all factors. Then product of all factors, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स आप समझो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो n is 24, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, दैट इज 12 into 2, राइट? तो 3 into 2 क्यूब, दैट इज 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होता है, अब देखो, मेरे को प्रोडक्ट करना है ना? तो मैं 24 के सारे फैक्टर्स लिखता हूँ, कौन से होंगे, 1 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 फैक्टर्स। मेरे को इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो देखो 24 24 24 24,
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? n बाय 2 करूंगा तो उतने 24 बन रहे हैं। मेरे पास 8 फैक्टर्स है, डिवाइड बाय 2 किया तो 4 24s बन रहे हैं। मतलब आई कैन से 24 रेज टू द पावर 4 is multiplication of all factors. So in our case, ठीक है, जो नंबर है, ठीक है, उसमें यू ऑल्सो डू द सेम मेथड, है ना। ये अब ये बहुत पूरा नंबर निकालना बहुत बड़ी बात है, n, but the answer is going to be n raised to the power number of factors 224 आ रहे थे इस केस में, डिवाइड बाय 2, so that is going to be the thing. So अगर मैं इसको ऐसे लिखने जाऊं तो आंसर should be 2 raised to the power 7, 3 raised to the power 6 into 5 का cube raised to the power n by 2, which is 224 आया था हमारे number of all factors. So 224 by 2, that is 112. This is going to be our product of factors. ठीक है, let's move to the next question. Oh, this question. देखो, basic concept of LCM समझना is very important for this question. 45 का prime factorization is what? 3 square into 5. This is 45, है ना? And 65 का prime factorization is what? 13 into 5. अब मेरे को ये पता है कि मेरा जो k होगा, just because my HCF of 45, 65 k is 5. My HCF is 5, which is highest common factor, है ना। तो मेरे k के अंदर भी 5 तो होना ही चाहिए, तभी तो वो कॉमन निकल के बाहर आ रहा होगा। उसके अलावा तो इट इज नॉट पॉसिबल। फिर व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, उसने ये चीज पूछी है। अब एक चीज समझते हैं हमको। अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, आई गेस, वेट अ सेकेंड, आई नीड टू चेक क्वेश्चन क्या है। इन योर डीपीएम क्वेश्चन वाज देयर कंप्लीटली। अच्छा, दे ही रखा है 6435, हाँ दे ही रखा है, आई मिस्ड इट। एलसीएम है 6435, एलसीएम क्या है 6435। तो हम जब एलसीएम निकाल रहे होते तब हम करते क्या है, बेसिकली जो पार्ट कॉमन है उसको तो हम एज इट इज लेते हैं, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा है, मतलब फॉर एन एग्जांपल इन दिस, लेट्स से कि 9 कॉमन आ रहा है फॉर एन एग्जांपल, तो 9 को आप एक बार लिखोगे और उसके ऊपर का जितना भी एक्स्ट्रा है यू मल्टीप्लाई, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एलसीएम, है ना। तो 6435 का इफ यू विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या आएगा, देखो आप इसको 5, 11, 13 और एक बार डिवाइड करिए, मैं भी डिवाइड करता हूँ यार, मेरे को भी प्राइम फैक्टराइजेशन में ध्यान नहीं आ रहा है इसका। 6435 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो आई गेट 1287, डिवाइड बाय 11 करूंगा तो आई गेट 117, डिवाइड बाय 9 करूंगा तो आई गेट 13। हाँ, तो 9 बाकी है। तो मेरे एलसीएम में ये सारी चीजें आ रही है ना। सो लेट मी रीराइट इट, लेट मी रीराइट इट। इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ। सो ये वाला केस है ना। अब माय के, जस्ट बिकॉज एक चीज समझो, एलसीएम में 11 आ रहा है ना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 11 है ना इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 11 है, तो पक्का इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 11 होगा, तभी एलसीएम में 11 आ रहा है ना। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम एक बार लिख चुके हैं, उसके ऊपर का हमको एक्स्ट्रा लिखना है, ठीक है। और मेरी लिमिटेशंस क्या है, सो अगर वो पूछेगा कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, तो आई विल राइट 5 into 11। बट व्हाट इफ के के अंदर देयर आर सम 3s and 13s एज वेल, 5 into 11 into 13 to the power something, let's say, and then 3 to the power something। सो होगा क्या कि यहां से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा 5 ही रहेगा। मैं अब देखो यहां से मैं 3 स्क्वायर बाय 5 जो है, तो यहाँ पे मैं 3 स्क्वायर ले लूं, है ना, और 13 टू द पावर 0 ले लूं, फॉर एन एग्जांपल 13 टू द पावर 0 ले लिया और मैंने यहाँ पे 3 स्क्वायर ले लिया, तो क्या होगा कि 3 स्क्वायर बाय 5, वो तो हमने पूरा पूरा एक बार ले लिया, 3 स्क्वायर ऑफ 5, है ना। यहाँ पे हमने 5 एक बार ले चुके हैं तो हम एक 13 उतारेंगे, है ना। और यहाँ पे हमने 5 ले चुका है तो एक बार 11 उतारेंगे, तो ये रहेगा किस्सा। सो इट कैन बी डन, ठीक है।
और लेट्स से आई एम टेकिंग समथिंग एल्स, मैं 3 का कुछ पावर ले लूं. So basically, the whole point I want to make is that cake will be of this format where 13 raised to the power a where and b raised to the power 3 raised to the power b. a जो है वो मैक्सिमम 1 जा सकता है क्योंकि हमारे फाइनल आउटकम जो है एलसीएम में वो 1 है, और b जो है वो मैक्सिमम 2 जा सकता है क्योंकि हमारे फाइनल आउटपुट में b जो है वो 2 है. इससे बड़ी वैल्यू अगर मैं लूंगा तो मेरा एलसीएम ही चेंज हो जाएगा, तो पूरे कॉन्टेक्स्ट को ही बदल देगा. ठीक है. तो अलग अलग केसेस भी बना सकते हो आप इसके अंदर, है ना, कि आपने ए की वैल्यू 0 ले ली, है ना, 0 1, और बी की वैल्यू भी आप अलग अलग डालोगे तो आपको यहाँ से नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के मिल जाएगी, और यहाँ से आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ के मिल जाएगी, विच इज मैक्सिमम पॉसिबल क्या है कि ए आप मैक्स टू मैक्स 1 ले सकते हो, विच इज के की वैल्यू क्या हो गई 5 इंटू 11, मैक्स टू मैक्स 13 टू द पावर 1, एंड बी की पावर मैक्स टू मैक्स आप ले सकते हो 3 टू द पावर 2. तो ये नंबर आया, ये नंबर इज एज गुड एज आर एलसीएम, है ना. सो मैक्सिमम माय के कैन टेक वैल्यू इज 6435. इन तीनों का आप एलसीएम निकालोगे तो के एलसीएम निकालोगे तो 6435 ही आएगा, एंड जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 5 ही आएगा. ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू इट कैन टेक, है ना. एंड आप अलग अलग वैल्यूज प्लग इन कीजिए, बी की वैल्यू 0 प्लग इन कीजिए, है ना, ए की वैल्यू 0 रखिए, तो ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 0 रखोगे आप तो आपको मिलेगा 55 विच इज लोएस्ट, है ना. बी की वैल्यू 1 रखिए और ए की वैल्यू 1 रखिए तो यू विल गेट वन मोर नंबर, है ना. यू कैन नॉट क्रॉस द मैक्सिमम लिमिट जो कि हमारे एलसीएम में है. ठीक है, आप बी की वैल्यू 1 रखिए, ए की वैल्यू 1 रखिए, बी की वैल्यू आप 1 रखिए, ए की वैल्यू 0 रखिए, बी की वैल्यू आप 2 रखिए, ए की वैल्यू 0 रखिए, है ना, और बी की वैल्यू 2 रखिए, ए की वैल्यू 1 रखिए, तो ये पॉसिबल चीजें हैं. इतने आउटकम निकल सकते हैं. एक और होगा ना, बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1, है ना, तो 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 पॉसिबल सॉल्यूशंस he can have. So this is it for today. We'll come back with new QA or DPM, and uh, we are going to do numbers in time पे, है ना, एंड नंबर्स के बारे में मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू जियोमेट्री, राइट. सो आज के लिए काफ़ी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमने डिस्कस करे. इफ़ नीडेड तो हम अगले डीपीएम के अंदर और कॉन्सेप्ट्स कवर कर सके, ऐसा एक डीपीएम बनाने की ट्राई करेंगे. थैंक यू.